पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड फंडामेंटल चैप्टर का एडजस्टमेंट एंट्री पर हम इसका पहले क्लास में समझाए थे, बताए थे, एंट्री कराए थे बहुत सारा सम। आगे फिर उसी के ऊपर सम हम आपको लिखा के कराएंगे। ओके, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ए बी एंड सी were partners. Stop. Their capitals were rupees 30,000, rupees 20,000 and rupees 10,000 respectively on 1st April 2013. Their capitals were rupees 30,000, rupees 20,000 and rupees 10,000 respectively on 1st April 2013. Full stop. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital. They were entitled to an interest on capital at 5% per annum. At 5% per annum. Full stop. In addition, B was also entitled to draw a salary. B was also entitled to draw a salary of rupees 500 per month. Of rupees 500 per month. Full stop. C was entitled to a commission. C was entitled to a commission of 5% on the profit. Of 5% on the profit after charging the interest on capital. After charging the interest on capital, comma, but before charging the salary payable to be. But before charging the salary payable to be. Full stop. The net profit for the year ended 31st March 2014 were rupees 30,000. The net profit for the year ended 31st March 2014 were rupees 30,000, comma, distributed in the ratio of their capitals. Distributed in the ratio of their capitals without providing for any of the above adjustment. Without providing for any of the above adjustment. Full stop. The profit were to be shared in the ratio of 2:2:1. The profit were to be shared in the ratio of 2:2:1. Full stop. Pass the necessary adjustment entry. Pass the necessary adjustment entry. लिखिए question number 2. Question number 2. The partners of a firm distributed the profit. The partners of a firm distributed the profit for the year ended 31st March 2003, rupees 90,000 in the ratio of 3:2:1. Rupees 90,000 in the ratio of 3:2:1 without providing for the following adjustment. Without providing for the following adjustment. Full stop. Paragraph change. Number 1. A and B were entitled to a salary. A and B were entitled to a salary of rupees 1,500 each. Of rupees 1,500 each per annum. 1,500 each per annum. Full stop. Number 2. B was entitled to a commission. Partner B. B was entitled to a commission of rupees 4,500. Of rupees 4,500. Full stop. Number 3. B and C had guaranteed a minimum profit of rupees 35,000 per annum to A. A minimum profit of rupees 35,000 per annum to A. Full stop. Number 4. Profit were to be shared in the ratio of 3:2. Profits were to be shared in the ratio of 3:2. Full stop. Paragraph change. Pass necessary adjustment entry for the above adjustment. Okay, चलिए 2 क्वेश्चन हम दिए हैं,
पहला क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व आउट कर रहे हैं, किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम क्या बोले थे, जब एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बोलेगा तो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ओके, पर्टिकुलर 3 पार्टनर है ए बी सी, कॉर्नर में टोटल 3 पार्टनर है ए बी सी, कॉर्नर में टोटल। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है ए बी सी, देयर कैपिटल्स वे ₹30,000, 20,000, 10,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2013। तीनों का कैपिटल दे दिया, ठीक है, कैपिटल दिया है, ये नहीं बोला देयर फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला, तो एडजस्टमेंट एंट्री जो बनाएंगे वो करंट अकाउंट थ्रू नहीं बनेगा, वो कैपिटल अकाउंट थ्रू बनेगा। अगर यही क्वेश्चन है बोलता देयर फिक्स्ड कैपिटल वे ₹30,000, 20,000 एंड 10,000, इस कंडीशन में लास्ट में जो एक एडजस्टमेंट एंट्री बनता है नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट में, वो वाला एंट्री करंट अकाउंट थ्रू होता, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला। ओके, आइए, according to the partnership date they were entitled to an interest on capital 5% per annum। तीनों को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 5% का रेट से। नेक्स्ट, बी को सैलरी दिया जाएगा 500 पर मंथ का हिसाब से, सी को कमीशन दिया जाएगा 5% ऑन प्रॉफिट। कौन प्रॉफिट पर, तो आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेमेंट टू बी को सैलरी जो दिया जा रहा उसको पेमेंट करने के पहले, लेकिन इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज करने के बाद, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट का साथ इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 5% सी को कमीशन दिया जाएगा। ओके, आगे बोल रहा है द नेट प्रॉफिट, फर्म का नेट प्रॉफिट बोल रहा है 31 मार्च 2014 को दिया हुआ 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी अबव एडजस्टमेंट। बिना एडजस्टमेंट किए हुए 30,000 रुपया जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो नेट प्रॉफिट को तीनों पार्टनर एडजस्टमेंट किए हुए, एडजस्टमेंट किए मतलब ना इंटरेस्ट एंड कैपिटल किया, ना सैलरी किया, ना कमीशन, तीनों का एडजस्टमेंट किए बिना ही नेट प्रॉफिट 30,000 को उन लोगों का कैपिटल का रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। तीनों का कैपिटल क्या है 30,000, 20,000, 10,000, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, कैपिटल रेशियो 3:2:1। इस हिसाब से 30,000 रुपये का ये लोग तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया बिना एडजस्टमेंट किए हुए। ओके, तब हम लोग उसको एडजस्टमेंट करके उसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का थ्रू देखा के वर्किंग नोट में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट में। ओके, चलिए आइए, सबसे पहले इंटरेस्ट एंड कैपिटल, एट द रेट 5% पर annum। इंटरेस्ट एंड कैपिटल से पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, मतलब इतना रुपया से पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए ना। ए का कैपिटल कितना है 30, बी का कैपिटल 20, सी का कैपिटल 10,000, तो तीनों का कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे। ए का निकलेगा 1,500, बी का निकलेगा 1,000, सी का निकलेगा 500। 30,000 का 5% 1,500, 20,000 का 5% 1,000, सी का 10,000 का 5% 500। टोटल इंटरेस्ट एंड कैपिटल तीनों को 3,000 रुपया ये इन लोगों को तीनों को मिलना चाहिए था टोटल मिला के। ओके, सैलरी दिया जा रहा है किसको, बी को, $500 पर मंथ इंटू 12 मंथ। सैलरी देने से पार्टनर्स का कैपिटल क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। किसको सैलरी दिया जा रहा, बी को, कितना रुपया 500 रुपया पर मंथ का हिसाब से 5 12 60 6,000 रुपया। ओके, सैलरी दिया जा रहा। नेक्स्ट, कमीशन दिया जा रहा, किसको कमीशन दिया जा रहा, सी को, कमीशन दिया जा रहा सी को। नंबर 3, कमीशन देने से पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा। क्या बोला कमीशन के बारे में, ना कमीशन के बारे में बोला, सीज कमीशन
ओके, नेट प्रॉफिट कितना है 30,000, बोलो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, लेकिन बी का सैलरी का पहले, दैट मीन्स लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, तो हो रहा कितना 27,000, लेकिन सैलरी का पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद कितना रहा 27,000। इसके कितना परसेंट दिया जा रहा ना 5% कमीशन दिया जा रहा है। ओके, 1350 इतना रुपये कमीशन मिल रहा है किसको, सी को। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 5% का रेट से, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा। सैलरी दिया जा रहा है बी को 500 पर मंथ के हिसाब से 6,000 रुपया टोटल हो गया। सी को कमीशन दिया जा रहा है 1350, हम कैलकुलेशन करके निकाल के बता दिए थे, टोटल हो गया। जो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ, जो डिवाइजेबल प्रॉफिट हुआ, जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो अमाउंट कितना निकला 19,650। ये रिमेनिंग प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 19,650। ये पैसा वर्किंग एडवांस कैलकुलेशन करके निकाल के दिखाया है। तो किस तरह से देखिए, वर्किंग नंबर 2, प्रॉफिट रिमेनिंग वो शेयर ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना 30,000, उसमें से क्या क्या माइनस होगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या माइनस होगा सैलरी, क्या माइनस होगा कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, सैलरी दिया बी को 6,000, कमीशन दिया जा रहा सी को 1350, टोटल मिला के हो गया 10,350। ये माइनस कर दिए, अमाउंट कितना बैलेंस बचा 19,650। ये हो गया आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना किस रेशियो से 2:1 का रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए बी सी, इससे तीनों का पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा ना 2/5 into 19,650, 2/5 into 19,650 and 1/5 19,650. ओके, अब आइए टोटल तीनों को कितना कितना अमाउंट मिलना चाहिए। नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय टोटल क्रेडिट बाय टोटल पेबल, कितना कितना मिलना चाहिए, इसका हिस्सा में आइए।
9360। सर एडजस्टमेंट करने के बाद इसका हिस्सा में निकल रहा 9360, इतना रुपया मिलना चाहिए, इतना रुपये से इसका कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। $14,860, इतना रुपया से बी का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। $5,780, इतना रुपये से सी का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। टोटल 30,000। लेकिन प्रॉफिट को कितना रुपया से लोग डिस्ट्रीब्यूशन किया था, कौन रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ना कैपिटल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ए का, बी का एंड सी का, इसका कैपिटल 30,000, इसका कैपिटल 20,000, इसका कैपिटल 10,000। फिर 2:1, दैट मीन्स ये लोग 30,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूशन किया था किस रेशियो से, 3:2:1। लेस already distributed by 3:2:1। कैपिटल रेशियो लिख दिए, मैंने 30,000 को डिवाइड किया था 3:2:1 का हिसाब से, लिखेंगे डेबिट। ओके, 3:2:1 बिना एडजस्टमेंट किए इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनर, सैलरी पार्टनर्स का कमीशन का बिना एडजस्टमेंट किए 30,000 रुपया के लोग डिस्ट्रीब्यूशन किया था कैपिटल रेशियो से। वो कैपिटल रेशियो इधर निकाल के दिखा दिए। ओके, तो इससे इन लोग का तीनों का हिस्सा में कितना कितना पैसा गिरा था ना, 3/6 इंटू 30,000, इसका हिस्सा में 15,000, 2/6 इंटू 30,000, इसका हिस्सा में 10,000, 1/6 इंटू 30,000, इसके हिस्से में 5,000, टोटल 30,000। चलिए, नेट इफेक्ट तीनों का क्या इफेक्ट पड़ा था देखिए। हम पहले इसके बारे में समझाए थे। ए का ये, ए का डेबिट 15,000, क्रेडिट 9,360, कौन ज्यादा है ना, डेबिट 5640, इसका कैपिटल डेबिट होगा 5640 से इसका कैपिटल डेबिट होगा। बी का ये कौन ज्यादा है, क्रेडिट कितना 14,860 क्रेडिट, डेबिट कितना 10,000, 4,860, कौन ज्यादा है, क्रेडिट, इसका कैपिटल क्रेडिट होगा 4,860, इसका कैपिटल क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है ये सी का 5,780, ये क्रेडिट, 5,000 डेबिट, कौन ज्यादा है, क्रेडिट, कितना रुपया 780, इतना रुपया से इसका कैपिटल क्रेडिट होगा। ओके, नेट इफेक्ट लास्ट में टोटल में नील, तीनों पार्टनर्स में इसका कैपिटल डेबिट होगा, ये दोनों का कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल और फिक्स्ड नहीं बोला है, इसीलिए जो एंट्री होगा एडजस्टमेंट एंट्री वो करंट अकाउंट थ्रू नहीं होके कैपिटल अकाउंट थ्रू होगा। आइए एडजस्टमेंट एंट्री, किसका कैपिटल डेबिट होगा, ए का कैपिटल डेबिट होगा, A's capital account debit to B's capital account to C's capital account। A का कैपिटल कितना से डेबिट होगा 5640, B का कैपिटल कितना से क्रेडिट होगा 4860, C का कैपिटल कितना से क्रेडिट होगा 780। हो गया। Being
adjustment for omission. Clear? First हिसाब, first sum complete. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देखिए। The partners of a firm distributed the profit for the year ended 31st March 2003 rupees 90,000 in the ratio 3:2:1 without providing for the following adjustment. ये क्या बोला, तीन पार्टनर है, ABC इसमें भी तीन पार्टनर है, और 30,000 रुपया प्रॉफिट को, सॉरी 90,000 में 90,000 प्रॉफिट को 3:2:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था। नीचे जो फॉलोइंग एडजस्टमेंट आइटम दिया हुआ, ये एडजस्टमेंट आइटम को बिना किए हुए 90,000 को डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था। ओके, वो नीचे का फॉलोइंग का एडजस्टमेंट है, साथ में आज गारंटेड प्रॉफिट भी दिया हुआ है। देखिएगा क्या है ना, ए एंड बी को वेर एंटाइटल टू ए सैलरी, ए और बी को सैलरी मिल रहा 1500 ईच पर एनम है, पर मंथ नहीं है। चलिए टेबल से एडजस्टमेंट पर्टिकुलर ए बी सी टोटल। नंबर 1 सैलरी मिल रहा, सैलरी मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। किसको किसको सैलरी मिल रहा, ए को और बी को 1500 ईच, पर नाम है 1500 इंटू 1500 प्लस 1500 टोटल 3000। सी को सैलरी नहीं मिल रहा है। ओके, बी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, बी को कमीशन भी दिया जा रहा है। नंबर 2 कमीशन, कमीशन देने से पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होता है। हम बार बार बता रहे एक ही चीज, ध्यान दीजिएगा इस बात को। कमीशन दिया जा रहा बी को 4,500 ओनली फॉर बी को, और किसी को नहीं। बी का कॉलम में 4,500 टोटल 4,500। ओके, नंबर 3 क्या बोला, बी एंड सी हैड गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 पर एनम टू ए। चलिए ये चीज को जानने के पहले आगे हम निकालते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट, फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, हालांकि 90,000 है लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नील नहीं है, सैलरी 3,000, कमीशन 4,500, 7,500। ये हो रहा 82,500। ओके, नेट प्रॉफिट फर्म का 90,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, नहीं लिखे, सैलरी दिया गया 3,000, कमीशन 4,500, 7,500 टोटल। नेट प्रॉफिट से पैसा माइनस किए, ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब तीनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2, उसमें ए का शेयर क्या होगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/8 इंटू 82,500, 3/8 इंटू 82,500। ओके, $30,938 निकल रहा। ध्यान दीजिएगा बात को। बोलता एक का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम काहे निकाल रहे, देखिए खाली एक का, कहे एक को गारंटेड दिया जा रहा प्रॉफिट। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/8 इंटू 82,500, शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना उसमें से 30,938। अब क्वेश्चन में बोला कि बी और सी गारंटेड लिया, गारंटी लिया कि ए को मिनिमम तो 35,000 रुपया प्रॉफिट दिया जाएगा। ओके, लेकिन कैलकुलेशन करके निकालने के बाद देखा गया कि ए का हिस्सा भी निकल रहा 30,938, उससे कम निकल रहा, तो एनी हाउ उसको 35,000 दिया जाएगा। तो 35,000 रुपया हम सबसे पहले ए को देंगे। अगर कोई कारण से ये प्रॉफिट का शेयर ए का हिस्सा में अगर आता 40,000 रुपया,
35,000 से ज़्यादा आता, उस कंडीशन में हम 40,000 रुपये उसको देते। मिनिमम 35,000, उससे कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो मिनिमम अमाउंट उसको दिया जाएगा। तो कितना है? 30,938 रुपया, जबकि उसको मिनिमम 35,000 रुपया देने का गारंटी किया है। बाकी लॉस को दोनों बियर करेगा, BRC। ओके, तो अगर किसी भी हालत में ये 40,000 होता तो 40,000 ही मिलता, लेकिन 35,000 से कम हुआ तो उसको 35,000 रुपया मिलेगा। कम से कम मिनिमम प्रॉफिट गारंटी लिया है BRC मिलके। तो उसका मतलब आइए, प्रॉफिट गारंटेड टू ए को कितना दिया जा रहा? 35,000। इससे उसका कैपिटल क्रेडिट होगा। ओके, इधर 35,000। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट